Hello viewers, I'm Aditi Tandon joining you from the national headquarters of the ruling BJP in New Delhi. This is located in central Delhi, very close to Lutyens Zone. We are here to cover the formal taking over of the new BJP National Working President, Nitin Nabeen, who was appointed yesterday. And right now you can see behind us that BJP workers are making a beeline to get a glimpse of their new president. He has arrived in New Delhi earlier today and he was received by a number of top BJP leaders at the airport. After which he came to the BJP national headquarters and here he was received by Union Home Minister Amit Shah and the outgoing BJP chief JP Nadda. Both of them then formally handed over the charge to him, after which he arrived in this convention hall of the BJP, the national headquarters, in order to meet the Karyakartas. And you can see behind us that there is a lot of enthusiasm around the new president. Let me also fill you in about Mr. Nitin Nabeen. His appointment was very surprising because he is a rather low profile leader of the BJP. Currently, he is a minister in the Nitish Kumar led NDA dispensation in Bihar. He was handling the portfolio of road construction and PWD. And yesterday, we were all very surprised when his name was announced because he was nowhere in contention and his name came as a huge surprise to a number of political observers, even to a lot of BJP workers. So Nitin Nabeen, viewers, happens to be the youngest ever BJP president in the party's 45-year history, and he's only 45 years old. Earlier, Nitin Gadkari, who was 52 when he took charge, when he became BJP president in 2009, he was the youngest. So behind us, you can see that the program is going to end and Nitin Nabeen is going to remain here. The next formality of the party is that a formal election for the post of national president will be held, in which we expect that Nitin Nabeen's election will be eventually officially approved and formalized. A notice of 15 days has to be given for the BJP's national executive meeting to be called. In that meeting, a formal resolution will be moved for the final appointment and election of Nabeen as the full-time president of the BJP. As you know, the outgoing president JP Nadda had taken charge in 2020 and he has been on an extension. We are joined by Radha Mehto. She is a BJP worker in Delhi and she belongs to Bihar. आप बिहार से हैं राधा जी? मेरी शादी बिहार से हुई है। आपको ये उम्मीद थी कि नितिन नबीन जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बन जाएंगे? देखिए, ये जो पार्टी है ना, ये जहाँ उम्मीद नहीं होती, ये उम्मीद से बढ़कर वहाँ दे देती है। तो ये चीज़ें हमने कई चीज़ों में देखा है कि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनको पार्टी उठा के ऊपर तक बिठा रही है। और ऐसी उम्मीद हमें नहीं थी कि भई ये भी बन सकते हैं और ना ही किसी और को उम्मीद थी, लेकिन बन गए, अच्छी बात है। अब हमें इनसे ये उम्मीद है कि ये काम अच्छा करें और पार्टी को अच्छे से चलाएं। हमें इनसे ये उम्मीद है अब, क्योंकि बैठ तो सभी जाते हैं, लेकिन अनुभव चलाना उस चीज को, क्योंकि बहुत बड़ी बात है अपने आपे में। और हम इनसे अब यही उम्मीद करते हैं, पूरी यहाँ की जनता जो है, पूरे हिंदुस्तान की, क्योंकि ये राष्ट्रीय की जनता है, वो यही इनसे उम्मीद करती है कि ये आगे से इस जो कार्य को है इसको अच्छे से संभालें और जनता के प्रति भेदभाव ना रखें, अपनी कुर्सी का मान सम्मान बढ़वाए और दूसरों को मान सम्मान दें, जैसे कि मोदी जी ने इनको दिया है। ये सबको से दें तो आगे ये देखने वाली बात है। बाकी तो हमारे हार्दिक दिल से इनको शुभकामनाएं हैं कि ये देश को अच्छे से चलाएं। We are talking to some of the BJP workers who are here to meet the new national working president of the party, Nitin Nabeen. We are joined by Municipal Councillor of Delhi, Mr. Brijesh Singh, and his friends here. All of them are BJP workers. Some of them are from Bihar. Madam, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। तो ब्रिजेश जी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि हाउ डू यू फील पार्टी हैज गॉट द यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट टुडे? बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी हाईकमान का निर्णय है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और किसी पार्टी में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद ये सब नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी में यही एक सबसे बड़ी सुंदरता है। आपके सामने इससे बड़ा कोई और मिसाल हो नहीं सकता कि यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व में जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके मुखिया
एक स्टेट से जो कोई स्टेट लेवल पे तो बहुत अच्छे 5 बार के विधायक हैं, सब जानते हैं, लेकिन पूरे नेशनल लेवल पे कोई नाम अच्छी तरह से नहीं जानते थे। लेकिन उनके काम के आधार पे, उनको जो पार्टी के प्रति समर्पण था, उसके आधार पे कहाँ एकदम हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा था ना, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, वहां पे नजर पहुंची और उस व्यक्ति को उठा करके आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे स्थापित किए हैं। ये कार्यकर्ताओं में किसी कार्यकर्ता कोई भी कुछ कभी भी बन सकता है। यहाँ पे किसी ऐसा नहीं है कि किसी का सिफारिश है किसी का हो, ऐसा कोई बैकग्राउंड हो, पारिवारिक बैकग्राउंड हो, राजनीति का हो तो वही बनेगा, ऐसा नहीं है कि हम उस खानदान में पैदा हुआ हो तो जो तभी हम बन पाएंगे। So viewers, like Brijesh Singh ji is telling us, the biggest message of this appointment is that any BJP worker can tomorrow aspire to hold the top office in the party. We'll talk to Nutan Mishra ji is from Bihar, although she is a BJP worker based in Delhi now. What is the message? सबसे बड़ा संदेश क्या है इस अपॉइंटमेंट का? मैडम, कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साह है। बीजेपी में सब मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो कुछ भी हो सकता है। ये चमत्कार है एक तरह से। एक नॉर्मल कार्यकर्ता को उठा के, जिसका ना कभी नाम ना र्यूमर ना कुछ चर्चा में भी नहीं था, लेकिन आज रातों रात वो एक सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और मैं एक ऐसे बिहारी होने के नाते बहुत खुश है, मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ और मेरे यहाँ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। अच्छा, ब्रजेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे जल्दी से। अब आपको क्या उम्मीद है आने वाले वक्त से? जनरेशनल चेंज हुआ है, पार्टी में जनरेशनल चेंज हुआ है, एक बहुत यंग अध्यक्ष बने हैं, अब क्या उम्मीद है आपको? निश्चित रूप से पार्टी हमेशा नए जनरेशन को मौका देती है, चाहे आप लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम किसी के टिकट के है या संगठन के अंदर कोई आप इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता, क्योंकि पार्टी दूरगामी सोच के साथ चलती है। हमारे जो पुराने जितने भी वो हैं उनके मार्गदर्शन पे और उनकी सलाह और उनका आशीर्वाद लेते हुए नए जनरेशन को भी मौका देती है काम करने के लिए और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। Thanks viewers for watching, and we will fill you in just as we have more updates. This was Aditi Tandon joining you from the BJP National Headquarters in Delhi, and I was joined on the video by Manas Ranjan Bhui. Thank you.